Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I am going to discuss about classification of gear. So guys, before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos because this video is very important for your ICR Fisheries PG exam and other fisheries related exam. So let's start the video. So guys, we are starting with the seine net. So seine net is very long net are designed to surround a school fishes, and it is an active gear, and four general type of seine net can be seen. So four general type of seine net are beach seine, lamprey net, danish seine and purse seine. So as you can see, these are used for surrounded school fishes. Okay guys, so let's see. First two now used as artisanal fisheries, and last two are too large to be operated successfully by artisanal fishermen. A seine is with or without a bag which set either from a shore or from a boat for surrounding a certain area and is operated with the two long ropes fixed at the ends. As you can see, it can be without bag or with bag, or it is operated from the shore or can be operated from the boat also. So as you can see here, we will see fish operation, how the net is set and the fishing is done. So seine are usually set from the boat to surround a certain area and hauled either from the shore or from a boat itself. As you can see, it is surround a area and it can be operated from the shore. As you can see here, the mans are driving the net from the shore and also from the boat. टारगेट स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं हमारी? डिमर्सल स्पीसीज लेस फ्रिक्वेंटली फॉर प्लेजिक फिशेज. Sea net are operated both in land and marine water. Inland and marine water both. So the seine nets are operated both in inland and marine waters. The potential negative impact may consist in the bycatch and the result from the use of large net with frequently too small meshes in a coastal area. So negative point यहाँ पे हमारा ये आ जाता है कि हमारा यहाँ पे बाई कैच काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, एज जो हमारा स्मॉल मैशेस हैं वो हमारी जो स्मॉल फिशेस को हैं वो बाई कैच में हमारी आ जाती हैं. टारगेट स्पीसीज बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती, स्मॉल फिशेस हमारी ज़्यादा आ जाती हैं. तो इसलिए हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ जाता है कि हमारे पास इस जो हमारे नेट्स होते हैं, ये शीन नेट जो होते हैं, इनमें हमारा बाई कैच ज़्यादा आ जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. सो हमारा फर्स्ट हम देख रहे हैं बीच सीन, जो हमारा जनरल टाइप 4 टाइप ऑफ सीन नेट्स हैं उसमें हमारा बीच सीन सबसे पहले है. बीच सीन कंसिस्ट essentially of a bag with a long rectangular and relatively narrow to the bag on either side of the mouth with crock line and lead line to keep it vertical in the water for fishing. So बीच सीन क्या हमारा कंसिस्ट करता है? बैग with a rectangular and relatively narrow. As you can see, this is the bag and it is in rectangular form and somehow narrow to the bag on either side of the mouth with cork line and lead line. cork line and lead line वहाँ पे प्रेजेंट होती है कि वो वर्टिकली हमारा ओपन रहे नेट, इसलिए हमारा क्या प्रेजेंट होता है? cork line, lead line. It is usually stacked at the one end to the beach, then from a boat set around a school of fish and the other wing is then hauled onto the beach. So एक जो हमारा एक पोर्शन जो है वो हमारा बीच पे सेट कर देते हैं हम, या फिर नेट से सेट कर देते हैं हम, जबकि हमारा दूसरा जो होता है अदर विंग्स जो होती हैं उसे हम हॉल के टाइम पे बीच से ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट द लैम्प्रे नेट. लैम्प्रे नेट जो है हमारा, लैम्प्रे नेट इज रिलेटिवली लूजन एंड ओपन नेट बैग विद 2 विंग्स. सो लूज होता है थोड़ा सा और हमारे 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी. इट इज़ fished from small boats or along the beach to catch the small fishes. So हमारा जो ये स्मॉल बोट से और along the beach से हम इसे ऑपरेट करते हैं. लार्ज लैम्प्रे नेट आर ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम लार्ज फिशिंग वेसल्स.
नेक्स्ट इज दानिश सीन. सो दानिश सीन हमारा क्या है? दानिश सीन इज सिमिलर टू अ ट्रॉलर. ट्रॉलर अभी हम आगे पढ़ेंगे ट्रॉलर क्या होते हैं. सो समहाउ सिमिलर होता है अ बिग नेट बैग विद द टू विंग्स दो फिश इन द डिफरेंट वे. इट इज़ यूज टू कैच अ फिश लिविंग जस्ट ओवर द बॉटम. बॉटम में जो हमारी फिशेज हैं उनके लिए ज़्यादातर ऑपरेट किया जाता है और फिशिंग बोट से ये ऑपरेट किया जाता है. नेक्स्ट इज पर्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ICR purpose, as the Persine is basically a rectangular encircling net with float line and with the metal ring attached to the foot ropes and the threaded onto the purse string. So एक रेक्टेंगुलर हमारा होता है ये एनसर्कलिंग नेट, इस टाइप का होता है. आगे आगे आप इसकी इमेज देखेंगे, इस टाइप का कुछ होता है यहाँ से, और यहाँ पे बैग हमारी फ्लोट लाइन होती है और नीचे हमारा होता है फुट रोप पे रिंग्स अटैच होती हैं, मेटल रिंग्स. ओके गाइस, यहाँ जैसे यहाँ पे हमारा फ्लोट लाइन है और यहाँ पे हमारे मेटल रिंग्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट इट इज सेट अराउंड द स्कूल ऑफ फिश, यूजुअली ऑफ शोर एंड ऑफ बॉटम. ऑफ शोर पे एंड ऑफ बॉटम पे जो भी हमारा स्कूल ऑफ फिश होता है वहाँ पे ये सेट किए जाते हैं. समटाइम्स दिस गियर इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद नाइट लाइट विद विच एनकरेज स्कूलिंग फिशेज टू कॉन्क्रीट एंड बिकम मोर एक्सेसिबल टू अ फिशरी. सो लाइट नाइट में, मतलब नाइट के टाइम पे हमारा लाइट फिशिंग किए जाते हैं. लाइट वगैरह, लाइट के साथ इन्हें हम सेट करते हैं जिससे कि हमारी जो फिशेज हैं वो एक्सेसिबल हों ईजीली. नेक्स्ट हमारा हम पढ़ रहे हैं गिल नेट. सो गिल नेट जो है हमारा, गिल नेटिंग इज कॉमन फिशिंग मेथड यूज बाय अ कमर्शियल एज वेल एज आर्टिसनल फिशरमैन ऑफ ऑल द ओशन एंड इन सम फ्रेश वाटर एज वेल एज इस्ट्री एरिया. सो जो हमारा गिल नेट है वो आर्टिसनल एज वेल एज कमर्शियल जो फिशरमैन्स हैं वो भी यूज़ करते हैं हमारा, और ये ज़्यादातर ओशंस में, फ्रेश वाटर एंड इस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं. गिल नेट आर वर्टिकल पैनल of netting normally set in a straight line. ओके गाइस, वर्टिकल पैनल होते हैं ऐसे ऐसे, और ये सेट होते हैं एक तरह से स्ट्रेट लाइन में. एज यू कैन सी दीज आर द वर्टिकल लाइन में है ये, और सेट करते हैं हम इन्हें. फिश मे बी कॉट बाय गिल नेट्स इन अ 3 वे. सो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेजेड क्या होते हैं, गिल्ड क्या होते हैं, एंटेंगल्ड क्या होते हैं. सो वेजेड हेल्ड बाय अ मैश अराउंड द बॉडी. अराउंड, ये हमारा मैश है, ये हमारा मैश है, ये फिश अराउंड द बॉडी, ये अराउंड द बॉडी जब आएगा तब हमारा वेजेड होगा. ठीक है. गिल्ड क्या होगा? हेल्ड बाय द मैश स्लिपिंग बिहाइंड द ओपरकुलम. बिहाइंड द ओपरकुलम मीन्स कि ये हमारी फिश है, सॉरी गाइस, ये हमारी फिश है. यहाँ पे जब हमारा जो गिल नेट है उसमें अगर एंटेंगल हुआ या फिर हेल्ड हुआ तो उसे गिल्ड कहेंगे. एंटेंगल क्या है? हेल्ड बाय टीथ, स्पाइंस, मैक्सिलरीज, यहाँ पे जब होगा तो उसे हम एंटेंगल्ड कहेंगे. और अदर विदाउट द बॉडी पेनिट्रेटिंग इन द मैश. मोस्ट ऑफन फिश आर गिल्ड. मोस्ट ऑफन फिश क्या है? गिल्ड होती हैं, यानी कि हमारा ओपरकुलम के पास पे यहाँ पे ऐसे करके अटक जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी यहाँ पे कैसे हम अरेंज करते हैं. फ्लोटर्स लगे होते हैं. ठीक है, ये मार्क करने के लिए होते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गिल्स. हमारे टाइप्स ऑफ गिल्स कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे हम. सेट गिल नेट्स होते हैं. सबसे पहला हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नेटिंग वॉल कैप्ट वर्टिकल बाय अ फ्लोट लाइन और वेड ग्राउंड लाइन. सो वर्टिकल होते हैं ये ऐसे हमारे, ये यहाँ पे फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा सिंकर्स होते हैं. बाय एडजस्टिंग द डिजाइन दीज नेट्स कैन फिश इन सरफेस लेयर इन मिड वाटर और एट द बॉटम टारगेटिंग प्लेजिक, डिमर्सल एंड और बेंथिक स्पीसीज. सो तीनों जगह पर हम इसे सेट करके किसी तरह एडजस्ट करके डिज़ाइन को हमारा सरफेस पे भी, मिड वाटर भी और बॉटम वाटर भी, हम इसे टारगेट स्पीसीज को हम फिश कर सकते हैं. दे आर पॉपुलर विद आर्टिसनल फिशरीज
because no specialized gear is needed and it is low cost based on the relationship fuel per fish. Okay guys, so these are cost effective क्यों है? क्योंकि इनके लिए कोई स्पेशलाइज गियर यूज़ नहीं होता. जैसे कि हमारे ट्रॉलर के लिए हमें पर्टिकुलर ट्रॉलर चाहिए होता है ट्रॉल नेट के लिए, सो वैसा हमारा गिल नेट में ऐसा कोई पर्टिकुलर गियर यूज़ नहीं होता, स्पेशलाइज गियर यूज़ नहीं होता. तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और ईजिली हम इसे यूज़ कर सकते हैं फिशिंग के लिए. Encircling gill net. These are set vertically in shallow water with the floating remaining at the surface, so they encircle the fish. Small open boats or canoes can be used to set the net around the fish. Once the fish are encircled, these are commonly used by a group of small scale fishers and does not require other equipment. So हमारा एनसर्कलिंग गिल नेट क्या होता है कि वर्टिकली हम एक बार सेट करते हैं, बट जब फिशेस हमें दिख जाएं या फिर हमारी जो फिशेस के स्कूल्स हैं वो अगर सामने आ जाए तो हम स्मॉल बोट से नेट को अराउंड द फिश हम सर्कल कर सकते हैं और ये इजीली कैप्चर हो जाएंगी फिशेस इसमें थ्रू द एनसर्कलिंग. Combined gill net. So these are very important trammel nets. This bottom set gear has two parts. The upper part is standard gill net, whereas semi-demersal and pelagic fish are gilled, and the lower part is trammel net, where bottom fish can be entangled. So 3 पार्ट होते हैं इनमें जनरली. 3 पार्ट में क्या होता है कि फिशेस जो होते हैं वो लास्ट वाली में हमारी जो टारगेट स्पीसीज है वो ईजिली हमारे एंटेंगल हो सकती हैं. So as you can see, these are maintained more or less vertically in usual way by floats on the floating and the weights on the ground line and the floats on the floating upper. These are the floats and these are the sinkers. Okay, traditional combined nets were hauled by hand, especially on smaller boats. So these are the traditional combined nets. So ये easily हम hand से haul कर सकते हैं और smaller boat use कर सकते हैं इनके लिए. Next is drift net. Drift net, it consists of one or more panel of webbing fastened together. Drift net drift with the current while they are connected with the operating vessel. The drift netter or drifter. So ड्रिफ्ट नेटर और ड्रिफ्टर क्या होता है? हमारे जो ऑपरेटिंग वेसल होती हैं जो ड्रिफ्ट नेट को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं वो हमारी नेटर और ड्रिफ्टर होती हैं. ड्रिफ्ट नेटर और ड्रिफ्टर होती हैं. ठीक है गाइस. सो 1 और मोर पैनल इनमें वेबिंग के हो सकते हैं, जैसे कि 1 या 2 या फिर 3 पैनल्स इसमें ड्रिफ्ट नेट में हो सकते हैं. यूजली यूज टू कैच स्कूलिंग फोरेज फिश such as herring, sardines and also larger pelagic fish such as tuna, salmon and pelagic squids. So जो हमारे ड्रिफ्ट नेट होते हैं वो जनरली जो स्कूलिंग फिश होती हैं, जो स्कूलिंग फॉरेज फिश हो सकती हैं, हेरिंग, सार्डिन वगैरह या फिर ट्यूना के लिए यूज़ होते हैं. एज यू कैन सी हियर आर द ड्रिफ्ट नेट कैसे ऑपरेट होता है. ये हमारी वेसल है. फ्लोटर सिंकर हमारे यहाँ पे ये लेड लाइन यानी सिंकर लगी हुई है, ये फ्लोटर्स हैं. ठीक है. और ये जैसे जैसे यहाँ से ये ऐसे आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एंटेंगल होती रहेंगी फिशेस हमारी. नेक्स्ट इज ट्रॉलर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गियर, फिशिंग गियर. ट्रॉलर कैसे हमारा ऑपरेट होता है ये हम देखेंगे. इट इज़ अ अंडर नेट यानी कि हमारा बॉटम मिड वाटर ज़्यादा हमारा यूजफुल होता है. ये एक्टिव फिश गियर है, कोन शेप्ड होता है, कोन शेप्ड बॉडी होती है ऐसे करके. मोस्ट वर्सिटाइल फिशिंग टेक्निक है. ट्रॉल नेट कैन बी ऑपरेटेड एट द surface, mid water, bottom water. These are generally very useful in seawater, freshwater bodies, more than freshwater bodies. Next, classification of trawls based on the mouth opening device, depth of operation and construction pattern. So, सबसे पहले हम देखेंगे माउथ ओपनिंग के बेसिस पे बीम ट्रॉल, बुल ट्रॉल एंड ऑटर ट्रॉल. सो and then depth of operation, bottom trawl and the mid water trawl, pelagic trawl. And the based on the construction, 2 seam trawl, 4 seam and 6 seam trawl. So let's see the classification. So हमारा beam trawl क्या है? Beam trawl towed on the sea bed in which the net is held open by a wood or steel beam. Okay guys. And the bull trawl is a boat which suit or hauls the net in the bull or pair trawling by using a 2 vessel. So 2 vessel के थ्रू हमारा जब
जो नेट है, पेयर ऑफ नेटिंग जो हमारी है, वो अगर हमारी हॉल होगी और शूट होगी तो उसे हम बुल ट्रॉलिंग कहेंगे. ऑटर ट्रॉल, ट्रॉल टोड ऑन द सी बेड हेल्ड ओपन बाय अ पेयर ऑफ ऑटर बोट्स. यानी कि ऑटर बोट्स हमारी क्या होती है? ऑटर बोट्स एक हमारी वुडन रेक्टेंगुलर शेप की बोट टाइप के होते हैं जो कि यूज होते हैं हमारे बीम ट्रॉलर को ओपन, हॉरिजॉन्टली ओपन रखने के लिए. देन बॉटम ट्रॉल, ट्रॉल towed along the seabed, those dragged along the bottom. बॉटम में अलॉन्ग, बॉटम ट्रॉल से आप समझ ही सकते हैं कि बॉटम में यूज होने वाले ट्रॉल हमारे बॉटम ट्रॉल है. मिड वाटर ट्रॉल, ट्रॉल कैन बी टोड इन द मिड वाटर टू कैच द प्लेजिक स्पीसीज. मेनली प्लेजिक स्पीसीज के लिए जब यूज होता है तो मिड वाटर ट्रॉल यूज होता है. ट्विन रिग ट्रॉल, मेथड ऑफ टोइंग टू ऑटर ट्रॉल्स साइड बाय साइड. ठीक है गाइज. मल्टी रिग ट्रॉल, मेथड ऑफ टोइंग टू और मोर ऑटर ट्रॉल्स साइड बाय साइड. मोर देन टू हमारा ऑटर ट्रॉल्स होंगे तो हमारे क्या होंगे? वो मल्टी रिग ट्रॉलर होंगे. नेक्स्ट, ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर. मेनली कैसे होता है ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? मेड अप ऑफ फ्रॉम टू शेप पैनल्स, टॉप एंड बॉटम ऑफ नेटिंग लेस्ड टुगेदर एट द ईच साइड टू फॉर्म अ एलोंगेटेड. सो फर्नल शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है. यहाँ पे हमारी एक अलग नेटिंग होती है, इसके नीचे पे एक अलग टाइप की नेटिंग इस टाइप का होता है. जैसा कि यहाँ पे हमारी जो होती है ऊपर की साइड पे ये अलग नेटिंग होती है और नीचे की साइड पे एक थोड़ा अलग फॉर्म होता है. फर्नल टेपर डाउन टू द कॉर्ड एंड. सो हमारा जो ये एंड होता है, ये वाला एंड, वो हमारा कॉर्ड एंड होता है. ठीक है गाइस. कॉर्ड एंड वेयर द फिश आर कलेक्टेड अंटिल द नेट इज हॉल्ड. यहाँ पे कलेक्टेड रहती हैं जब तक कि हमारा नेट जो होता है वो पूरा हॉलिंग ना हो जाए उसकी. द रोप एट द अपर एज इज हेडलाइन, हैज अ फ्लोट्स, साइड रोप, विंग लाइन्स, गैबल्स, वेटेड ग्राउंड गियर. सो ये जो हमारा होता है यहाँ पे ये हेड लाइन होती है. ठीक है. यहाँ पे फ्लोट्स होते हैं हमारे और यहाँ पे जो होती है ग्राउंड गियर होता है, मतलब यहाँ पे वेट्स होते हैं जिसके थ्रू वो नीचे सिंक कर सके इजीली. ठीक है गाइस. विंग्स कनेक्टेड बाय अ ब्रिडल और स्विप्स, लेंथ ऑफ सिंगल वायर. स्विप्स क्या होते हैं? लेंथ ऑफ सिंगल वायर. डोर्स होते हैं स्टील वुड के, अटैच्ड बाय अ बोर्ड टू अ बोर्ड बाय अ वार्प्स. द माउथ is kept open by a long wings. The mouth of trawl can be kept open using devices such as frame, beam, otter board, kite besides floats and sinkers. Sometimes trawl net is kept open by two vessels. यहाँ पे हमारा जैसे नेट है, यहाँ पे एक बोट यहाँ से कनेक्टेड होगी और यहाँ पे एक बोट कनेक्टेड होगी. तो ये ओपन रखने के लिए माउथ हमारा दो बोट भी यूज होती हैं, जैसा कि अब आप देख सकते हैं. ठीक है. ये हमारा पूरा ट्रॉल है. ठीक है. ये हमारा कॉर्ड एंड है. ओके. ये हमारी जो अपर बॉडी है वो है हमारी ग्राउंड रोलर्स अप टू 1 अक्रॉस एंड 200 kg ईच. ग्राउंड रोलर्स जो होते हैं यानी कि जो हमारे नीचे के साइड सिंकर्स होते हैं वो हमारे 200 kg तक होते हैं. हैवी चेन्स होती हैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ऑटर बोट कनेक्ट करने के लिए, ये सब. ठीक है. जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बोट है, यहाँ पे ये वार्प्स वगैरह है, यहाँ पे ऑटर बोट कनेक्टेड होगी कि ये ओपन रखने के लिए. ये हमारा ट्रॉल है. द कंट्रीज बैंड ट्रॉलर्स. सो इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, अटलांटिक वाटर्स एंड न्यूजीलैंड, मेडिटेरियन सी, दीज आर द countries which has banned the trawlers. Reason: increased catches and income for local fishermen, to end conflict with industrial trawlers, conservation of corals to reduce discard, protect the nature, seamounts, hydrothermal vents and corals. Next, mitigating methods क्या क्या है? mitigating methods क्या क्या है हमारे? using large mesh in the cord ends. कॉर्ड एंड्स में हम लार्ज यूज़ करेंगे तो जो हमारी स्मॉल फिशेज़ हैं, बाई कैचेस फिशेज़ हैं, वो ईजिली हमारी एक्सक्लूड हो जाएंगी वहाँ से. ठीक है. डिवाइस इन द ट्रॉल नेट, ट्रॉल दैट रिड्यूस द कैप्चर ऑफ स्मॉल एंड अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स. TED इज़ अ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस. ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TED? टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस. सो turtles and shark can be excluded from this type of devices. These are the devices which can be used in the trawlers.
लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए हमारे. ठीक है गाइस. सो here ends our topic. So thanks for watching guys, and do subscribe to my channel for more such videos, and do follow me on Instagram too for more such notes and exam related questions.